गावें सब गावें हर हर उत्तम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावै। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार। डिठै मुकत ना होवई जिचर शब्द न करे विचार। सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। सारंग महला पंजवा। अवर सब भूले भ्रमत न जानिया। एक सुधाकर जाकै हृदय वसिया। तिन बेदें तत पछानिया। अवर सब भूले भ्रमत न जानिया। एक सुधाकर जाकै हृदय वसिया। तिन बेदें तत पछानिया। रहाओ पर विरत मार्ग जेता किच होइए। तेता लोग पचारा। जो लो हृदय नहीं पर गासा। तो लो अंध अंधारा। जैसे धरती साध है बहुबिद बिन बीजै नहीं जामै। राम नाम बिन मुकत न होई है। टुटै नाही अभिमानै। नीर बिलोवै अत श्रम पावै। नैनू कैसे रिसै। बिन गुर भेटे मुकत न काहूं। मिलत नहीं जगदीसै। खोजत खोजत यह विचार्यो। सर्ब सुखा हर नामा। कहो नानक तिस भयो परापत। जाकै लेख मथमा। खोजत खोजत यह विचार्यो। सर्ब सुखा हर नामा। कहो नानक तिस भयो परापत। जाकै लेख मथमा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी अपार किरपा बख्शिश रहमत सदका आप समूह संगतां धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पावन इतिहासक स्थान
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 7:45 ਤੋਂ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰ ਹਰਜਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਨੀਕੋ ਠਾकुर ਦਿਸਾ, ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੂੰ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ। ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਤ ਜਨ ਤੁਰਾ। ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, रूहानियत दे भंडार, बरदो आलम शाह, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर ऐसे पवित्र स्थाना दी आप हाजरी भर रहे हो, जिन्हां सतगुरां दे दर्शन कीतियां हिरदे दे विच अंतर ध्यान पेखण नाल जिथे तन दे दुख दूर होंदे ने, उथे मन दे भी सारे दुख ते रोग कट जांदे। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। सतगुर सच्चे पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी आप सिर ते मेर भरिया हथ रखन। जो इस मुकद्दस दरबार की मर्यादा है, आओ जिन्हें भी सतगुर सच्चे पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के स्थान ते विराजमान हो, जिन्हें दूरों नेड़ियों देश विदेश दे विच मीडिया राही घर बैठे इस मुकद्दस दरबार
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਉਣ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ। ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਵਰ ਸਭ ਭੂਲੇ ਭ੍ਰਮਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਬੀਇੰਗਸ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੇਡ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ, ਲੋਭ ਵਾਲੀ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ, ਗਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 100 ਦਰ ਤੇ 100 ਘਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਭੇਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਵਰ। ਅਵਰ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ, the whole transcendental being, the whole personality on this planet earth, the whole human race। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਅਵਰ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ ਵਸ, ਕਾਮ ਵਸ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਵਰ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਆ ਦੇਹੁਰੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਰ ਵਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੌਰ ਨ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਅਵਰ। ਆ ਅਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਵਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ।
ਆ ਦੂਆ ਤੀਆ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਪਸਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ when I used to teach, ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ। ਨਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਵਰ ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹੀ ਅਵਰ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਮ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਆ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਅਵਰ ਕਾਜ। ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੂਹ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਬੈਠੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਅਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਅਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਅਵਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅਵਰ ਕਹਿਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਵਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਅਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਿਲ ਜਿੱਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤਿਲ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ 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 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਰਭਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਅਵਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਿਲ ਜਿੱਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵਰ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਆ ਸਭ ਅਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਭ ਅਵਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਵਰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਵਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਵਰ ਸਭ ਭੂਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਵਰ ਕਿਹਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਇਹ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ। ਸਤੀ, ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਅਵਰ ਅਵਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ
ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਕੇ 10 ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਭਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਰਸਗਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜਾ, ਦੇਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚੋਰਾਂ ਜ਼ਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ, ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ। ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਲਾਗ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਦੇ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਅਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਖ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਇਹ ਅਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਰ ਸਭ ਭੂਲੇ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਸਭ ਭੂਲੇ, ਭ੍ਰਮਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਭ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਖ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਭ੍ਰਮਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਭ੍ਰਮਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਭੂਲੇ, ਇਹ ਅਵਰ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ स्वामी कै द्वारै दीजै बुद्ध विवेका। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी, मेरी बुद्ध विवेक मैनू अवर वल धकेलदी है, तुसी कृपा करो मेरे हिरदे च ये सच वस जाए, साहिब मेरा एको है भाई, एको है, होर किथे जाण दी मैनू जरूरत ना पए। आ पता लग जाए कि मिलसाज संगत भज केवल नाम, ए हिरदे च वस जाए। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। की होएगा? मैल खोई कोट अघहर है, कोट अघहरे निर्मल पई चीता। कोट करोड़ा पाप, करोड़ा ही अंदर दी मैली बिरतियां, इथे एक खिन एक तिल जिन्ने घालिया है ना संगत दे विच बैठ के, ओदी सारी मैल खत्म हो गई। निर्मल भई चीता, भावें करोड़ा ही अवर कर्म कर लो, सतगुरु जी कहते तिल जिड्डा भी नहीं हिरदे च वसेगा। आ स्पष्ट हो जाए। आ है देखो एक तुक दी डूंघाई, देखो गुरु अर्जन साहब जी दी सारी जिंदगी दा सच अपने कलावे दे विच लैके बैठी है। एक कोई तुक कि अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया, एवें नहीं प्यारे इन विद मिलन ना जाए, इस तरह ते है ही नहीं। ये इस तरह है कि सतगुर तो जे मंगना है ते सतगुर जी दे इस दर ते आके अरदास करिए, मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। गुरु रामदास जी, जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे, जे कुछ मिलना है ते इत्थे ही मिलना है। गुरु दी संगत जेड़ा करदा है ओनू उत्थे ही मिलना है।
गुरु की संगत च आके मन टिकाउण वाले नूं यह पता लगना है कि श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का सिर दे उत्ते हाथ है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म। इत्थे आके पता लगना है चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर कर धारियो कर, गुरु का हाथ इत्थे आके मिलना है। अवर ते किथे नहीं मिलना, अवर ते धक्के ने, अवर ते कूड़ है, अवर पसारा है, दिखावा है, लोकाचार है। साहिब जी कहते ये सच है। मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माता, जन्म जन्म के किल बिख। देखो एक तिल कालिया होया, गुरु रामदास जी कहते जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो ऋण लाथा। करोड़ा ही अवर कर लो, ये नाम का ऋण नहीं लथेगा, आश्वासां का ऋण नहीं ला सकांगे। गुरनाम दियो ऋण लाथा, मेरे मन अवर नहीं, मेरे मन बिल्कुल दृढ़ करके गुरु रामदास जी कहते मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, अवर बिल्कुल भी नहीं। जे जपना है ते अर्थ भरपूर प्रभु का नाम जप, वो की है, वो सतगुरु जी अगे कृपा कर दे। अगली तुक दे विच स्पष्ट कर दिता, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, बिन नावै जीवन बिरथा। नाम तो बिना जिन्ना भी अवर है सब वृथा है, सब वृथा है। अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया, बिन नावै जीवन बिरथा। पर सतगुरु जी कोलों ए वाली बिरती मंगीए, मोको कीजै दास दास दासन को। जे मैनू संगत च बिठा के दासां दा दास बना लेना, हर दया तार जगन्नाथा, ते इत्थे आके अर्जोई करिए हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंथा, होर सब अवर है, अवर सानू इस मार्ग ते तुरन नहीं देंदा। क्यों चल है मार्ग पंथा, किवें तुरांगे, हम अंधले को गुर अंचल दीजै। सतगुरु जी ने तरस करके अपना पल्ला फड़ाया, अपना पल्ला फड़ाया, ताकि अवर तो साडा निबेड़ा होया ते एक प्रभु दे चरना दे विच साडी लिव लग गई। आ है पर यह होए किवें? हुण यह प्रश्न खड़ा हुंदा है, यह स्पष्ट हो गया कि अवर काज तेरा किते ना काम। यह भी समझ आ गया गुरु अर्जन साहब जी कि अवर साडा पार उतारा नहीं करनगे। हुण दसो बई किवें यह अवर तो खेड़ा छुटे? केड़ा ऐसा तुसी सानू एक संजीवनी रूपी, एक बख्शिश रूपी, एक औखद रूपी दात, एक रतन रूपी दात देन लगे हो, जिदे करके साडा अवर तो खेड़ा छुटे। सतगुरु जी ने इको ही अखर दे विच गल मुका दी। अगे सतगुरु जी गुरु अर्जन साहब महाराज जी सच्चे पातशाह पिता जी महाराज कहंदे सुनो फिर एक सुदाखर। हा 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 हा, इत्थे आ सिखर है जी, आ सिखर है, क्योंकि पहलियां तुकां ही रहाओ दियां ने। इस शब्द की आरंभता ही रहाओ दी तुकां तो हुईयां ने, इस करके साडा जोर इस तुकां ते लग रहा, क्योंकि यह रहाओ है, यह ठहराओ है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द होल क्विंटेंसेंस ऑफ द शब्द। एक सुदाखर, एक अखर, एक अखर, एक शब्द, एक नाम, एक साहिब, एक किणका, जिदे हिरदे च एक तिल जो जोगा भी वस गया ना, तिल जिड्डा भी, एक सुदाखर। भाई कान सिंह नाभा सुदाखर दा अर्थ करते हैं दो लफ्जां दे विच तोड़ के, सुध आखर, शुद्ध अखर, इनू सुदाखर क्या। और यही सुदाखर गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने सतगुरु पातशाह जी वाहिगुरु जी वास्ते वरत्या। सुनियो ये विचार बड़ी, दिस इज वन ऑफ द सटल थॉट, बड़ी सूक्ष्म विचार है जी। एक सुदाखर, सुदाखर है शब्द, सुदाखर है गुरु की बाणी, जिस बाणी नू साहिब जी कहंदे हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमख ना मन ते टारी रे। गुरा ने एक निमख वास्ते भी इस सुदाखर नू अपने चिंतन तो, अपनी नजरां तो, अपने नेत्रां तो, अपने श्रवणा तो, अपने अंदर दी बिरती तो दूर नहीं कीता। हमारी प्यारी अमृतधारी गुरनिमख ना मनते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन, जिन्हें अंदर दे नेत्रां तो दर्शन कर ले, जिन्हों ये बाणी स्पर्श कर गई, इत तन लागै बाणियां, सुख होवै सेव कमाणियां। बाकी ते सब अवर है, सब दुनिया आवन जानियां।
सब अवर है, सब आना जाना है, सब इथे दुख है। एक सुधाखर ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਧੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸੁਧਾਖਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਖਰ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। सब कच्चा है जी। सुधाखर सुनो की है। सतगुरु जी कहते सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहते कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना, भुलेखा ना खा जियो, मूंह तो भावें वो रब रब करदे दिसन। हर हर नित करह रसना कहा कछू ना जानी, क्योंकि चित जिनका हिर लया माया। अंदर ते अवर है ना, अंदर अवर चल रहा, पर अवर काज तेरा किते ना काम। कहते ये नहीं, जे जपना है तो जपो, ये वाली बाणी जपो कि सतगुर की बाणी सत सत कर मानो गुर सिखो। ये सुधाकर है। गुरु रामदास जी कहते सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। हर करता आप मुंहों कढ़ाए, जे अवर बोलोगे ते झूठा है, वो झूठ है, कबाड़ है, कूड़ है। ना बिना सब कूड़ गाली होचियां, जिन्हों साहिब जी कहते सतगुर की रीस है होर, कच पिच बोल दे से कूड़ेयार कूड़े चढ़ पड़ी है। उन्हां दा अंत बहुत माड़ा है, बिल्कुल खाक होणगे। ये सुधाखर है। एक सुधाखर ये है हमारी प्यारी अमृतधारी। ये है अमृत बाणी हर हर तेरी। ये है बाणी गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी का है सेवक जन मानै, परतख अवर सब खत्म हो जाएगा, परतख गुरु निस्तारे। प्रतख रूप दे विच सतगुरु जी दर्शन कराउणगे। यह है बाणी। इनू ही सत सत करके इनू गुरु अमरदास जी कहंदे यह है कि आवो सिख सतगुर के प्यारियो, गावो जपो जी गावो सच्ची बाणी। आ सच्ची बाणी सुधाकर है, होर नहीं। होर सब गाली होचियां ने, होर सब कूड़ है, होर सब आला बाला है, होर सब गल्ली बाती हैं। बातन ही आसमान गिरायो, जो मर्जी इत्थे बैठ के भी गल्लां कर लीए, पर जे बाणी तो बाहर गए सतगुरु जी कहते होर कुछ सुधाखर नहीं, सब झूठ है, सब कूड़ा है। इनू सतगुरु जी कहते आ सांभ लीए, अवर आपे खत्म हो जाएगा, अवर आपे। ये है बाणी गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी का है सेवक जन माने। यह है कि इस बाणी की महिमा बड़ी बेशुमार है। ये शुद्ध आखर, ये शुद्ध अखर किसी माड़े कागज दे उत्ते, किसी माड़े पत्थर उत्ते, किसी माड़े पत्तल दे उत्ते, भाव पत्रा जेड़ा उस तो बनता है पत्ते तो, ओदे उत्ते भी लिखिया जाए तां भी नमस्कार कर दे। मैं नहीं कह रहा, ये गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कह रही है। ये सुधाखर की है, तर तार अपवित्र कर मानिया रे। तार दा रुख बिहार च लगता है, सवेरे सवेरे उत्थे दे लोग शराब कड्ढन लग जाते हैं। जेड़े बंदगी करने वाले ने, जेड़े आ पूजन वाले ने, तार दे पवित्र दे लागों नहीं लंघदे। तर तार अपवित्र कर मानिया रे। पर दूसरी गल, तार दा पवित्र भावें अपवित्र है, क्योंकि नशा इस दर ते मंजूर नहीं है। गुरु नानक दे दर ते जोगियां कोल भी गुरु नानक साहब महाराज गए, मदिरा दा प्याला रखिया, गुरु अर्जन साहब महाराज जी की बाणी भी पढ़ांगे, गुरु नानक साहब जी दे दर्शन करिए। गुरु साहब जी कहते तुसी आ जिहड़ी आ मदिरा बनाउंदे हो, भलिओ आ मदिरा तुहाडा पार उतारा करन वाली नहीं है। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है। बाबा जोगियो, बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवै आ रस छड्ड दो, जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमों धक्के खाए। ये नहीं, पर जे ये सुधाखर अपवित्र पत्ते दे उत्ते, पर तार दा रुख है, निकलदी शराब है, पर तार दे पत्ते दा कागज भी बनदा है। जेड़े पुराने समय भगत लोग सी, वो कहंदे तार दे पवित्र ते रब दा नाम नहीं लिखना। पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों भगत बोलते ने, ए जे तार दे पत्ते कागज बनया होया तार दे रुख तो ओदे उत्ते भी लिखिया जाए, सारा जगत इनू झुक के नमस्कार करेगा, क्योंकि ये अखर शुद्ध है। जिथे लिखिया जाए वो कागज भी पवित्र है, जिस हिरदे रूपी सेज ते लिखिया जाए वो हिरदे रूपी सेज भी पवित्र है।
तरतार अपवित्र कर मानिया रे, जैसे कागरा करत विचारन। कागज, वो कागज भी पवित्र है, पर भगत भगोत लिखिया तेह ऊपरे। जे भगती उत्ते लिखती जाए, सतगुर जी दी बाणी लिखती जाए, ए सुध आखर लिखता जाए, भगत भगोत लिखिया तेह ऊपरे, पूजिया कर नमस्कारन। नमो होंदी है। फिर ये देखो, जे कागज मैले तो मैला कागज, माड़े तो माड़ा कागज बनता उस रुख तो है जिहड़ा अपवित्र है, उहदे उत्ते लिखता जाए ते वो भी पवित्र है। भावें एक करोड़ा पाप करके शरीर, ए मन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की सरदल ते आया। ए अखर जिन्हों सतगुरु जी गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते हैं, सुनो दुनिया दे लोको, आ जिन्ने भी सिमरत शास्त्र वेद पुराण ने, आ जिन्ने भी ने, एक गल चेते रखियो, जे आ शुद्ध अखर हिरदे च वस गया ना, कहते सारा कुछ पार उतारा हो जाएगा, करोड़ा पाप धुल जाएंगे जिन्ने भी ने। सतगुरु जी ने क्या, किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। आ जड़ा शुद्ध अखर, इनू शुद्ध एक एक लफ्ज अज दे शब्द दे खुल के दर्शन करने वाले, ये दर्शन अखां वाले नहीं, ये दर्शन फलसफा वाले। बड़ा गुझा फलसफा लुकिया होया सतगुरु जी दे इन्हां शब्दां दे विच। गुरु नानक साहब महाराज जी इस सुधाखर की गल करते, गुरु पातशाह जी नूं भी पुछया लोकां ने, दुनिया के पुजारियां ने, उस पुजारी जात ने कि तुसी आ किथे तुरे होए हो, क्यों तुरे होए हो? कहंदे जिन्हां दे अंदर आ सुधाखर आया है, मैं उन्हां तो आ सुधाखर लैण तुरिया होया। पर दुनिया के लोग कहंदे गुरु नानक साहब वो नीच लोग ने, वो नीवी जात दे लोग ने, वो शूदर लोग ने, वो चमड़ा गंढण वाले ने, वो कपड़ा बनाउण वाले ने। दुनिया के पुजारी वाद ने उन्हां दा खंडन करता, उन्होंने देवालियां तो सुट के बाहर कर दिता, तुसी उन्हां कोल तुरे हो। सतगुरु जी ने जवाब दिता बाणी दे विच, कहंदे आ दुनिया दी जात पात, आ दुनिया दे रंग रूप, आज दुनिया दी आ बनाई हुई फिरके प्रस्त बिरती ने गर्क करके रखता है, ये सब अवर है। मैं तुहानू दसदा, जे ये ताड़ दा रुख भी पवित्र हो जाता है, पत्रा भी पवित्र हो जाता है, ये बाणी जिस हिरदे विच आउंदी है वो सब कुछ पवित्र हो जाता है। सतगुरु जी का शब्द सुनो कि ये सुधाखर की है, मैले तो मैले दिखदे पसारे नीवी जात वाले लोकां नूं भी ये पवित्र कर गया। भाओ तेरा भांग, भाओ देखो उथे तरतार आया, इथे भांग आई, जिक्र नशे का ही किया, पर सतगुरु जी ने विचों ही नशे का खंडन भी कर दिता, अंदर दी बिरती नाम का नशा देता। वो नशा हटा के सतगुरु जी के चरणों का, सतगुरु जी की प्रीति का, इस सुधाखर का, इस प्रेम की, इनू क्या बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहे आ। पर यह नहीं कि सिफती रता सद बैरागी जूऐ, जन्म ना हारै, कहो नानक सुन भरथर जोगी, खीवा ए वाला नशा कर, एदी मस्ती लै, खीवा अमृत धारा, इस अमृत धारा। भाओ तेरा भांग, खलड़ी मेरा चीत, तेरा भाओ मेरे वास्ते भांग, खलड़ी जिदे विचों सांभी जांदी मेरा हिरदा, तेरा नाम इन्ना पवित्र है। भाओ तेरा भांग, खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं कर हत्थां नूं कांसी भांडा बना के, कासा बना के आया, किना कोल, जिन्हां कोल इह सुधाखर उतरिया। भावें वो दुनिया के दिखदे पसारे दी नीवी जात है, पर जिथे ये शब्द आ जाए वो कदी नीवा नहीं होता, कदी मैला नहीं होता। कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीखिया पाए। सुनो दुनिया दे लोको, जिस तरह कुसम कहंदे आ केसर कुसम मिर्ग मैं हरना, ना केसर माला हुंदा है, केसर भावें एक शूद्र तोड़ के लियाए, पवित्र इन्ना है पुजारी ने पूछना नहीं कि इस केसर नूं किदे हथ लगे ने, देवालिया च जाके वो पवित्र रूप च वरत्या जांदा है ते लोकां दे इत्थे लगदा है। केसर कुसम, कुसम भावें जेड़ा जिथों मर्जी आए, कुसम नूं फुल नूं नहीं पुछदे कित्थों आया है, वो भी देवालिया च चढ़ जांदा है, वो भी पवित्र है। मिर्ग कस्तूरी, कस्तूरी नूं भावें कोई भी हिरण विचों कढ के लियाए, कस्तूरी फिर भी महंगी दी महंगी है। हरना, हरना कहंदे सोने नूं, कदी सुनियार ने सोना सस्ता इस करके नहीं वेचिया कि आ सोने दे गहने लै जाओ, क्यों?
क्योंकि इन्हां गहणियां नूं नीच जात वाली औरत ने पाया होया सी, इस करके मैं सस्ता वेच रहा। सोने की कीमत कदी नहीं घटती, भावें कोई नीच जात वाला दुनिया का कहण कहाउण वाला भी पाए। केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना सर्ब शरीरी चरदा, ओ पवित्र दे पवित्र है। चंदन भगता जोत ने ही सर्बे परमर करना, चंदन पवित्र दा पवित्र है। जिस तरह चंदन अपनी खुशबू दे नार ताड़ी दे रुख नूं भी खुशबूदार कर देगा, निम नूं भी, टाली नूं भी, किकर नूं भी, सारियां नूं अपनी खुशबू दे देगा। भगत दा भी यही सुभाव है, वो सारियां नूं सुधाखर दे नाल पवित्र कर देगा। केसर कुसुम मिर्ग में हरना सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जोत ने ही सर्बे परमल करना। के पट पांडा कहना कोय, घ्यो ते रेशम दोनों पशुआं कीड़े विचों निकलदे है। घ्यो पशु विचों आया, मज गां विचों, ओनू ते कोई अपवित्र नहीं कहंदा, वो भी वरतिया जांदा पूजा लई, बंदगी लई, वो भी हवन करदे हो तुसी लोको। तुसी ही जेड़े नीवी जात दा ढंडोरा पिटदे हो कि ओनू तुसी हवना च अगन भेंट करदे हो, तुहानू नहीं पता वो पशु तो आया, वो क्यों नहीं अपवित्र होया। के पट पट रेशम दा कपड़ा तुसी लैंदे हो अपने अपने दान पुन वास्ते, पर तुहानू ये नहीं पता ये रेशम दा कपड़ा भी कीड़े विचों बणिया है, ये भी कीड़े विचों बणिया है। इस धरती ते रेशम दा कपड़ा उस कीड़े विचों निकल के ओदे रेशे कढ़ के कपड़ा बनाया गया, ये क्यों नहीं अपवित्र होया। तुहाडे कहण मुताबिक ये पवित्र, ये अपवित्र, ये कदी नहीं हो सकता। जिस तरह केसर कुसुम मिर्ग में हरना सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जोत इन्हें ही सर्बै परमल करना। के पट पांडा कहना कोई, घ्यो ते रेशम कदी अपवित्र नहीं है। इस तरह ये सुधाखर जिदे अंदर वस जाए वो भी कदी अपवित्र नहीं है। दुनिया दी जातां पातां ते रूप रंग, भावें वो गरीब है, भावें अमीर है, भावें घाह वढ़दा है, भावें खेतीबाड़ी जमींदारी करदा है, भावें दुकान करदा है, जिदे अंदर ये सुधाखर वस गया, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे, ओदी महिमा नहीं गणी जा सकती। के पट पांडा कहे ना कोई, ऐसा भगत वर्ण में हो। ऐसा भगत है जिदे अंदर ये सुधाखर वस गया। यह है सुधाखर दी बख्शिश, यह है बाणी दी बरकत, यह है सतगुर जी दी इत तन लागै बाणियां। इनू क्या पोथी पुराण कमाई है, भौवट्टी इत तन पाई है, सच बूझण आण जलाई है। यह तेल दीवा इउं जलै, यह जिहड़ा शब्द मन नूं स्पर्श हो गया, सतगुर जी कहंदे एक सुधाखर जाकै हिरदै वसिया। जिदे हिरदे दे विच ये सुधाखर शुद्ध अखर, ये रब, ये वाहिगुरु रूप आही है ना, शब्द ही वाहिगुरु जी का रूप है। उत्पत परलो शब्दे होवै, शब्दे ही फिर ओपत होवै। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, शब्द ही धर्म है। सिखो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक शब्द ही बाणी है, शब्द ही सुधाखर है, शब्द ही वाहिगुरु जी का रूप है। यही है, इनू ही आपां क्या कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। आही गुरु है, यही सतगुर जी है, यही पिता है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा। सब ने ठाई आ जिहड़ी अवस्था आ जे साडे मन च, फिर सानू कदी भी डोलन वाली बिरती नहीं आएगी। असी फिर नहीं डोलांगे, फिर बिल्कुल दृढ़ हो गए जे सतगुर जी दी इस शब्द की प्रतीत आ गई। एक सुधाकर जाके हिरदय वसिया, तिन बेद है तत पछाणिया, ओनू इस धरती का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। जे एक अखर वस गया, जे एक अखर ये सुधाकर वस गया, ये वाहिगुरु जी का नाम वस गया, कहते बेद है, बेद है तत पछाणिया। The one who get the essence of Guru Granth Sahib can get the quintessence of the whole wisdom on this planet earth, whole wisdom of this universe। सारी धरती का ज्ञान उन्होंने सतगुरु जी बख्श देंगे। यही भगत जी कहते ना, ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंज तत्त ते जन्मा, साकत लोभी ए मन मूड़ा। इसी मन नू क्या कि यह मन ले जो उनमुन रहे तो तीन लोग की बातें कहा है। इस मन नू जेड़ा टिका के सुधाखर वसा लेगा, वो तिन्ना लोकां दी ज्ञान तो भर जाएगा।
ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਭਕਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਸੁਦਾਖਰ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਸੁਦਾਖਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਹੈ ਤਤ ਪਛਾਨਿਆ, ਵੇਦ ਹੈ ਤਤ ਪਛਾਨਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਪਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਤਾ ਲੋਗ ਪਚਾਰਾ। ਆ ਸੁਣੋ ਅਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਵਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਿੱਧ ਜਟਾਧਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਦੋ, ਪਰਵਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਰਵਿਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਤਾ ਲੋਗ ਪਚਾਰਾ। ਜੇ ਪਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ। ਜਿੱਚਰ ਪਹਿਨਨ ਖਾਵਣੇ ਤਿੱਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਤਾ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਵਾਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਆ ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲੋਕਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਦਾਖਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਹੈ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਝੂਠ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਪਰਵਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਹੀ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੁਦਾਖਰ ਬਾਣੀ ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो सुदाखर। गुरु की बाणी ब्रह्मा वो वाहिगुरु जी ए खसम की बाणी है। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। बाणी ब्रह्मा वेद, वेद इथे चार वेद नहीं जिन्हों आपां ऋग्वेद यथुर्वेद शामवेद यजुर्वेद कहंदे, ए नहीं। वेद का मतलब इथे है ज्ञान। ये बाणी है सतगुरु जी दी, अकाल पुरख जी दी। ये बाणी महापुरख की निज कर वासा होए, ये महापुरख दी बाणी है। बाणी ब्रह्मा वेद ज्ञान, ज्ञान नू क्या धर्म दृढ़ो। मैं तुहानू दसदा प्रविरत मार्ग भावें लोकाचार है, पर इथे जेड़ा इस प्रविरत नू गुरु के सुध्याखर नू गुरु के शब्द नू हिरदे च वसाएगा। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जीओ। लोका दे दुनिया दे लोग कहणगे ये पाप है, गुरु रामदास जी कहंदे सारे पाप खत्म हो जाणगे। अगे अंत विच इसी लाम दी इसी पदे दी अंतली तुक है, सहज आनंद हुआ वडभागी मिल हर हर मंगल गाया। गुरु रामदास जी भी कहंदे सहज आनंद, दोनों चीजां। ते गुरु अमरदास जी भी कहंदे
इस प्रवृत्ति दे विच आनंद भी है ते सहज भी है। जिथे सहज है उथे आनंद है। सहज तो बिना आनंद नहीं वस सकता। जिथे आनंद वस गया उथे चिरंकाल लई सहज वस जाएगा। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। आनंद ते सहज इकट्ठा है। इत्थे गुरु अमरदास जी कहते सतगुरता पाया सहज सेती। मेरी मां मेरे अंदर आनंद पिया मेरी माए सतगुरु किवें पिया? सतगुरु मैं पाया, एक सुधाखर सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां, अंदर खुशियां, सहज आनंद हुआ वडभागी गुरु रामदास जी। ये प्रवृत्त फिर माड़ा नहीं है। जाओ लो हृदय नहीं परगासा, ताओ लो अंध अंधारा। भाई जिन्ना चिर तक शब्द हिरदे च नहीं वसिया, ये जिन्ना भी पसारा दिखता है सब हनेरे चाहिए, ये सब कूड़ चाहिए। फिर गृहस्थ दा ही अहंकार लै बैठेगा, मैं गृहस्थी हां। गृहस्थ सतगुरु जी ने गृहस्थ कली भोगण वास्ते, कली कमाई वास्ते, कली लोकाचार वास्ते नहीं दिती सी। सतगुरु जी ने गृहस्थ दिती सी पुता माता की आसीस। मां अपने पुत्र नूं नाल बिठा के कह रही है आ मैं तेनू गृहस्थ समझावां। सतगुरु जी दा किन्ना प्यारा शब्द है। आपां अक्सर रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ खुशी वेले किसी का जन्मदिन पुत्र दा धी दा कि यह शब्द पढ़िया जाए पूता माता की आसीस। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गृहस्थ किवें कमाउणा है? पूता माता की आसीस जे गृहस्थ कमाना है ते पुत्रा सुन ले, निमख ना बिसरो तुमको हर हर। जे प्रभु विसर गया ये गृहस्थ जहर हो जाएगी। ये गृहस्थ माया दा भोग बन जाएगी, माया दा घेरा बन जाएगी। इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी नकटी को ठनगन बाडा डू। किन्ह विवेकी काटी तू। ए गृहस्थ आ विवेकी नहीं बन सकता। गृहस्थ तू आ लुट लेगी। यह है इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे है मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। ये मौकम फौज हटली है, गृहस्थ नहीं बनेगी जिन्ना चिर तक सुधाखर नहीं होएगा। ताइयों कहंदे निमख ना बिसरो, अख दे चपकाउण जिन्ना भी रब ना विसरे गृहस्थ चे, नहीं ते पुत्र कलत्र माया का धो बन जाएगी। ये पुत्र कलत्र ही लै बैठणगे। जिन्हों गुरु रामदास जी दे बाबत भट्ट जी कहंदे हम अवगुण भरे एक गुण नाही। जपो जी अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम भै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। कली गृहस्थ है ना ते ये वाली प्रीत पार उतारा नहीं करेगी। मोह दुख बन जाएगा, मोह दियां फाइयां बन जाणगियां। तित सरवरड़ै पहले निवासा, पानी पावक तिन है किया। ये गृहस्थ ए है पंकज मोह पग नहीं चालै। ये पंकज आ चिक्कड़ दे विच मोह दे चिक्कड़ च पैर नहीं चलणगे। पंकज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी वाले सब डुबदे फिरदे ने, गृहस्थ कमाउण वाले डुब जांदे ने जे सुधाकर नहीं है। हम देखा तह डूबी वाले मन एक ना चेतस। गृहस्थ बख्शी सी, पुत्र बख्शे सी, धियां बख्शियां, घर बख्शिया, बार बख्शिया, सवारी बख्शी, कारोबार बख्शिया, धन बख्शिया, सोना बख्शिया, चांदी बख्शी, रुपए दमड़ा सब कुछ बख्शिया। एक रब विसर गया भाई, जिस तो सारा कुछ मंगण आया। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे दरबार तो सब कुछ मंगिया। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने सब कुछ दिता, पर एक दिन आके भी शुकराना नहीं होया साहिब जा कि किथे गृहस्थ दे विच बैठ के पुत्र धियां दे नाल कि आओ भलियो असी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दा शुकराना करिए। किथे ए मन कुचज्जा ते नहीं रह गया? मंज कुचज्जी अमावण डोसड़े हों क्या शहरावण जाओ जियो, हिक दू हिक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाव जियो। ए ना हो गया सोयना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो। गुरु हरकृष्ण साहब सब कुछ देने वाले ने। सोयना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो। ये वस्तु शह दित्तियां गुरु हरकृष्ण साहब जी ने दित्तियां, पर गुरु हरकृष्ण साहब विसर गए। ये वस्तु शह दित्तियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मैं इन्हां नाल चित ला लिया ते कहना मैं वड्डा गृहस्थी हां, पर शब्द ते भुल गया गुरु हरकृष्ण साहब ते विसर गए।
दात प्यारी विसरिया दातार, कीते को मेरा समाणै करणहार तृण जाने। मेरा मेरा नहीं, मेरा मेर पर्वत बहुत वड्डा जेड़ा मिल गया। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो, ए वस्तु शै दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। रस सोइना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदिर, रस मिठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने इसी धरती इसी थां तो इसी सरदल तो औरंगजेब नूं पहला जफरनामा लिख के भेजिया सी, नह मलेश को दर्शन देऊं। जे पिता गुरु हर राय साहब जी ने कहा कि दर्शन नहीं देने ते ये शब्द लिख के भेजिया महला पहला, क्या खादा है क्या पैदा होए इसी थां तो, इसी सरदल इसी थां दे बाहर औरंगजेब खड़ा सी। किथे साडी भी बिरती औरंगजेब वाली ते नहीं कि गुरु हरकृष्ण साहब दा शुकराना नहीं। क्या खादा क्या पैदा होए, जा मन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मीठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, ये सारा कुछ। क्या कपड़ क्या भोग सुखाली, कीजै भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे मैली वास। गुरु नानक साहब गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कहते नानक सच्चे नाम बिन सब्बे टोल विनाश। ये ग्रस्त पाप बन जाएगी जे प्रभु का नाम नहीं है, जे गुरु चेता नहीं है। ये हंधारा है जैसे धरती साध है, बहुविध बिन बीजै नहीं जामै। एक जमींदार धरती दे उत्ते हल वाउंदा है, वाही करदा है, सुहागा फेरदा है, बहुत कुछ कर लेंदा पर नाम दा बीज नहीं बोझिया। असी तीरथ ते चले गए, गुरु हरकृष्ण साहब जी दी सरदल ते आ गए, उत्थे चले गए इत्थे चले गए, तीरथ स्नान कर ले, हर तरह दे कर्म कांड कर ले, पर गुरु दा नाम ही नहीं हिरदे, सुधाखर ही नहीं हिरदे च वसाया। करसान सारा कुछ करी जाए, जे सुहागा भी फेर ले, जे भाई सुहागा फेरन तो पहला बीज ही ना बोए तो बीज कित्थों उगेगा, फसल कित्थों लगेगी। इत्थे जिन्ना मर्जी भी परपंच कर लिए, कर्म धर्म पाखंड जो दिशा तिन जम जागाती लूटें, मन ते टिकाया ही नहीं, फिर फसल किवें जमेगी। नाम दा बीज ते पाया ही नहीं। नाम राम नाम बिन मुकत ना हुई है, टूटै नाही अभिमान है। ये नाम जे हिरदे च वसिया नहीं, अभिमान नहीं टूटेगा, मैं मेरा ही रहेगा, मैं ही करदा। जिन्ना चिर तक मैं है तू नहीं वसदी, जिस दिन तू आ गई, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का शुकराना आ गया, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया जत देखो, तत तू नीर बलोवै अमृत श्रम पावै, नैनू कैसे रीसै। पानी नू जिन्ना मर्जी मधानी नाल रिड़क लो, नैनू कहंदे है मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन उसी दिन निकलना है जिस दिन सतगुर जी दे नाम दा बीज अंदर पैना है। बिन गुर भेटे मुक्त ना काहूं, मिलत नहीं जगदीसै। गुरु नू मिल के भाई किसी दी मुक्ति नहीं है। गुरु दे नाम तो बिना, सुधाखर तो बिना कोई भी सतगुर जी दी बख्शिश दा पात्र नहीं हो सकदा। अंतली तुकां दे विच गुरु अर्जन साहब महाराज जी बख्शिश करदे, भाई असी तुहानू इस जिंदगी दा सारा निचोड़ कढ के दस रहे हां। खोजत खोजत यह विचारियो, सर्व सुखां हर नामा। जे सारे सुखां दा मूल तुसी चाहुंदे हो ते गुरु दा नाम, गुरु दा सुधाखर, इनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवे। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जाकै लेख मथामा। जिदे मथे उते ये लेख होएगा, सतगुरु जी कहंदे ये ते उन्नू ही प्राप्त होना है। भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंग जाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया के। नहीं तो ये जन्म बिरथा चला जाएगा। सतगुरु जी तो चंगे भाग मंगीए, संगत दे विच बैठना मंगीए। जेड़ा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की सरदल ते आया, सारा कुछ मंगदियां उथे प्रभु तो शब्द दी, नाम दी दात मंगीए। समा समाप्त है जी। यह है विचार इन द नटशेल। दुनिया का जिन्ना कुछ दिखदा पसारा, ये सब अवर है। गुरु दी संगत ते गुरु दा शब्द, यही मूल ते तत्त है। कल दी हाजरी होर है। आप संगतां दी कल भी सेवा करनी है जी।
ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hare Krishna